and the charge q is entering in this way. ये जो चार्ज है ये ऐसे 90 डिग्री पे इंटर कर रहा है. Now find the direct. अब ये क्या है, सर्कुलेट होगा या नहीं होगा, because it is entering at 90 degree, there is going to be circulated. तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा. अब उस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करो. मैग्नेटिक लाइंस आर लाइक दिस, वेलोसिटी इज दिस वे. This is what I am using Fleming left hand rule. So magnetic field is what represented by the first finger. Velocity of the charge is represented by the middle finger. So what is the direction of force we are getting? Inside the board या in inward direction. So जो फोर्स होगा वो इनसाइड द बोर्ड आएगा. वो सब वेक्टर प्रोडक्ट से भी ले लो. जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस एक्सिस में है, आई कैप में है. वेलोसिटी किधर है, जे कैप में. तो फोर्स किधर आएगा, जे क्रॉस आई which is minus k cap. So that magnetic force is acting in inward direction. तो जो फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, inward. So when that magnetic force is acting in inward direction, so because of that inward force, जैसे ये इंटर करेगा, it is going to complete a track, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. लेकिन ये सर्कुलर पाथ ऐसे होगा, because ये ऐसे इंटर कर रहा है ना, it is entering. Suppose this is the magnetic field, this is the magnetic field, and charge is entering like this. तो ये जैसे इंटर करेगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स ये साइड में लग रहा है. क्लियर? ये ऐसे जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कंप्लीट द ट्रैक लाइक दिस. इस टाइप से सर्कुलेट हो, मतलब ये ऐसे इस 3 डायमेंशन प्लेन में मूव करेगा. ये ऐसे है ना, ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा. यू कैन सी ना, दिस चार्ज इज एंटरिंग लाइक दिस. जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, इट वुड बी फोर्स, तो ये ऐसे मूव करेगा दिस वे in z plane. It is going to be circulated. और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, टाइम पीरियड, रेडियस, वो सब कुछ सेम रहेगा. तो रेडियस वही रहेगा mv अपॉन qb, और टाइम पीरियड भी सेम लगेगा, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने सफिशिएंट रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है. तो t is equal to 2 pi m अपॉन qb. So here angle between velocity and magnetic field is 0, that's why it is not forced. Undeviated, वो straight line में गया. Here angle between velocity and magnetic field is 90 degree, that's why it is circulated in z plane. वो z plane में circulate हो गया इस टाइप से, जैसे हम आरती करते हैं ना उस टाइप से. Clear? Because force is acting along z axis, तो चार्ज ऐसा z plane में circulate हो जाएगा. And it is going to take the complete time, जो पूरा टाइम लेगा वो 2 pi upon qb, and its radius is what, mv upon qb. So the velocity, when velocity of the charge is parallel to the magnetic field, तो वो force नहीं develop हो पाता, because थीटा 0 होने पे फोर्स 0 हो जाएगा. अब नेक्स्ट केस जो मैं लूंगा उसमें कुछ थीटा एंगल बना चाहिए इंटर करता है अगर वो. In 8th question, so 8th case is the magnetic field like this B, and the charge is entering this way. This is what the velocity q charge, which is making some angle theta with the magnetic field. So here velocity of the charge is making theta with the direction of magnetic field. अब इस v को हम resolve करेंगे into 2 parts. The velocity, the component of the velocity which is parallel to the magnetic field, which is v cos theta, and the velocity which is perpendicular is what, v sin theta. Clear? So the component of this velocity in the direction of magnetic field is what, v cos theta, and the component which is perpendicular to velocity is v sin theta. So this v cos theta तो force नहीं, because of v cos theta no magnetic force is acting, because this v cos theta is in the direction of magnetic field. But v sin theta is what, the component of the velocity which is perpendicular to magnetic field, तो इस पे force लगेगा. So this particle is circulated because of v sin theta. लेकिन v cos theta क्या करेगा, उसको आगे डिस्प्लेस करेगा. In the previous case वो एक ही जगह सर्कुलेट हो रहा था. It has only rotational motion, no translational in the previous case. But here in this case, the particle is circulated because of v sin theta and it is displaced. ये जो translational motion है, इसमें rotation आएगा because of v sin theta और translation आएगा because of v cos theta. v sin theta उसको circulate करेगा this way. It is circulated. That charge is circulated because of v sin theta, and because here v cos theta is also acting. अगर ये नहीं होता, मतलब ये ऐसे इंटर किया होता तो एक ही जगह, एक ही ट्रैक में, सेम पाथ में बार-बार सर्कुलेट होता. बट इन दिस केस ये क्या करेगा, ऐसा मूव करेगा. So this charged particle is performing circular motion because of v sin theta and translation motion. ये आगे जो जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, that is because of v cos theta. तो एक स्पाइरल पाथ में जाएगा और जब दो राउंड के बीच का जो गैप होता है that is called pitch.
यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं v sin theta is responsible for circulation and v cos theta is responsible for translation motion. So v sin theta is responsible for circular motion and v cos theta is responsible for translation motion. So ये सर्कुलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ v sin theta और आगे जा रहा है बिकॉज ऑफ v cos theta. अब देख लो, तो अगर मैं टाइम, अब यहाँ पे देखो जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो क्या होगा QVB sin theta. Here theta is not 90 डिग्री ना, तो अब मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या हो जाएगा Q, या ऐसे इसको लिख सकते हो QV sin theta into B दिस वे. तो अब रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा MV sin theta upon MV upon QB. दिस व्हाट द रेडियस का एक्सप्रेशन. क्लियर? तो रेडियस इज व्हाट MV sin theta upon QB. टाइम पीरियड में वेलोसिटी का कोई रूल होता नहीं कि वो v sin theta v cos theta. तो टाइम पीरियड तो हमारा सेम रहेगा 2 pi m upon QB because the time period does not depend on velocity का वैल्यू. तो t is equal to 2 pi m upon QB. अभी अगर मुझे पिच लेंथ निकालना है तो पिच कितना होगा, ये पूरे एक टाइम में कितना आगे डिस्प्लेस हो गया. इन वन टाइम पीरियड व्हाट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज परफॉर्म बाय दैट circular charged particle. So pitch is equal to, pitch का कौन रिस्पांसिबल है v cos theta. ये because of v cos theta it is performing translation motion. So v cos theta और कितने टाइम तक, टाइम taken by that particle to complete one loop. So v cos theta into time period. Yeah, you can write v cos theta into time period, the same formula 2 pi m upon QB. So pitch is equal to v cos theta into t, where t is the time period to complete the track. So t is equal to 2 pi m upon QB. So pitch is equal to v cos theta into t, या v cos theta 2 pi m upon q into b. ये हमारा टोटल पिच हो गया. तो इट डिपेंड्स कि एट व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो चार्ज इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रैक, उसका पाथ, वो स्पाइरल होगा, सर्कुलर होगा तो कितना रेडियस टाइम पीरियड, वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे इंटर कर रहा है. यहाँ पे ये जो केस था 6 years था उसमें वो अनडेविएटेड गया था बिकॉज इनिशियली दैट चार्ज इज मेकिंग 0 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Okay, next is if a charged particle is moving in an electric and magnetic field both. अगर दोनों फील्ड में वो साथ में, मतलब दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं, यहाँ पे सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, both the fields are present. This is what electric field, this is the magnetic field. And a charged particle is moving with some velocity v. So if a charged particle is moving in an electric and magnetic field both the fields are present here. और उस फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, तो दिस चार्ज इज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ. इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करेगा बिकॉज देयर इज अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट वुड बी फोर्स्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बिकॉज इट इज मैग्नेटाइज्ड, इट इज ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी. तो जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स. तो लॉरेंट्ज फोर्स में दोनों फोर्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. वेक्टर एडिशन यू हैव टू टेक. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा QE प्लस मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट QVB sin theta. एंड
अब ये ऐसा नहीं डायरेक्ट ऐड कर दोगे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यू हैव टू ऐड कि इन विच डायरेक्शन दीस टू फोर्सेस आर एक्टिंग, देन यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो वेक्टर एडिशन करना है यहाँ पे। अगर दोनों बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ऐड कर दो। अगर 90 है तो इसके अकॉर्डिंग वेक्टर एडिशन यू हैव टू टेक। F is equal to QE, that's the electrostatic force, plus QVB sin theta. अब अगर सपोज करो कोई चार्ज पार्टिकल which passes undeviated, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड था सपोज, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो कहीं पे यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, अनरिफ्लेक्टेड चार्ज, यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, this is the range of magnetic field, direction of magnetic field is given, it is in inward direction B, और एक चार्ज यहाँ पे इंटर किया, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो डेविएट ही नहीं हुआ, इट गोज अनडेविएटेड। यहाँ पे इसने इसके डायरेक्ट नॉर्मली क्या होता था कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, सो इट इज going to perform a circular motion because magnetic force is not always perpendicular to the direction of velocity। तो ये उसका v का डायरेक्शन था, तो अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो इट शुड बी सर्कुलेटेड, बट इस केस में क्या हुआ कि ये चार्ज अनडेविएटेड क्रॉस कर गया उस मैग्नेटिक फील्ड को। इट मींस दैट मैग्नेटिक फोर्स इज कैंसल्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इस रेंज में ये चार्ज अनडेविएटेड जा रहा है, तो जैसे वो इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इट वुड बी फोर्स्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स। That magnetic force is cancelled by the electrostatic force. That's why this charge is undeviated. That charge goes undeviated. Otherwise ये सर्कुलेट होगा ना, तो ये सर्कुलेट तो हुआ ही नहीं। जब सर्कुलेट नहीं हुआ इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल हो गया। कोई है जो मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर रहा है। So कौन मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल करने वाला है यहाँ पे? Because it is that charge is moving in electric and magnetic field. तो magnetic force is cancelled by electric force, electrostatic force. So F B is equal to what? Fe. That magnetic force is cancelled by electrostatic force. So FB हमारा क्या होता है? QVB is equal to F is what? QE. दोनों साइड से QQ को कैंसिल कर दो, तो V is equal to what? E by B। या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? V क्रॉस B। You can find the direction of electric field also। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन में निकालना होगा। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? V क्रॉस B। अब यहाँ पे बताओ डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो ये चार्ज गया, इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर है? करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज व्हाट FB। यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक लाइंस आर इन इनवर्ड डायरेक्शन। चार्ज की वेलोसिटी, बिकॉज़ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड करंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो करंट हमारा राइट साइड में जा रहा है, फोर्स अपवर्ड, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस इनवर्ड है तो फोर्स अपवर्ड जा रहा है। इट मींस दिस चार्ज इज फोर्स्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगा, तो उस फोर्स को कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर जाना चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दिस Fe मैग्नेटिक फोर्स इज कैंसिल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सोचो, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज इज फोर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इज फोर्स्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। So it is a positive charge, so it would be forced in the direction of electric field. इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक लाइंस आर लाइक दिस because this positive charge force in downward direction, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर? यस सर ऐसा मत करते रहो, समझ में आया ना? because I am going to give you the question to solve. In that you have to find the direction. ऐसा नहीं बस हाँ सुन रहे हो यस सर ऐसा करते गए। ठीक है, नेक्स्ट सपोज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड। अगर सपोज करो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हैं, दिस द मैग्नेटिक लाइंस, दिस द मैग्नेटिक फील्ड, a negative charge enters like this, a negative charge goes undeviated in this magnetic range। तो अगेन अगर डेविएशन नहीं हुआ, इट मींस magnetic field is cancelled, sorry magnetic force is cancelled by the electrostatic force। Now when it enters in a magnetic region, so find the direction of magnetic force first। It is a negative charge, so negative charge में current किधर होगा? ऊपर की तरफ। If negative charge is moving in downward direction,
The direction of flow of current is in upward direction. Now find the direction of magnetic force. Lines are inward, current is in upward direction, so magnetic force would be acting towards left. इधर force जाएगा magnetic force FB. अभी magnetic force अगर ये side में है and that force is cancelled by electrostatic force, it means electrostatic force is in this direction FE, and it is a negative charge. So negative charge is always forced against the electrostatic field. नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है वो फील्ड के अगेंस्ट होता है, तो ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? लेफ्ट साइड में। हाँ सर मतलब क्या, जब मैं बना दूंगा तब तुम हाँ सर करोगे, उसके पहले नहीं समझ, जब मैं पूछता रहूंगा तो नहीं बोलोगे, जैसे मैं बता दूंगा तब तुम जज हो क्या मेरा आंसर करेक्ट कर रहे हो। So यहाँ पे this charge is moving in downward direction because there is a negative charge. So on the basis of direction of velocity of the negative charge, you can find the direction of current. If a negative charge is moving in downward direction, so current upward direction जाएगा। अब इसमें magnetic force का direction find करो, तो you can use Fleming left hand rule. Magnetic field, current, so we are getting force towards left. तो magnetic force left side में जा रहा है. To cancel this force, electrostatic force should be in the right direction. अब electrostatic force right direction में है, तो it is a negative charge, so negative charge is always forced against the field. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? लेफ्ट साइड में, because there is a negative charge. So positive charge is forced in the direction of field and negative charge is forced against the field. थर्ड केस देखो, अब मान लो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंटैक्ट किया and it goes undeviated. Now find the direction of magnetic field. Find direction of magnetic field. इसमें magnetic field का डायरेक्शन बताओ। अब देख लो, because there is a positive charge which enters in an electric field. So positive charge जैसे इंटर करेगा, positive charge is always forced in the direction of field. तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर आएगा, because positive charge जैसे magnetic रीजन इंटर कर जाएगा, it is always forced in the direction of field. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड में आना चाहिए, FB। तो देखो अपने पास दोनों का डायरेक्शन है, वेलोसिटी किधर है? माइनस जे कैप में, मैग्नेटिक फोर्स किधर है? माइनस आई कैप में। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो आप देख लो हमारा क्या हो जाएगा, F क्या होता है? F इज इक्वल टू या QVB, तो V क्रॉस B, F हमारा क्या आ रहा है? माइनस आई कैप, द वेलोसिटी में क्या है? माइनस जे, तो इधर क्या होना चाहिए? के होगा, प्लस के या माइनस के? तो प्लस के रहेगा, बिकॉज जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है, बट यहाँ पे माइनस जे क्रॉस के क्या दे देगा? माइनस आई। तो बी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? इन विच डायरेक्शन इट इज? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो, आई जे के में तुम सोच रहे हो बैठ के। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फोर्स किधर है? लेफ्ट साइड में, वेलोसिटी राइट। तो पहले चलो मैंने वेलोसिटी को फिक्स कर लिया, बिकॉज़ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स लेफ्ट साइड में है, इसको घुमाओ ऐसा, अरे वो तो मेरा लाइक दिस, क्लियर? अभी क्लियर है ना? क्लियर? सो करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मैग्नेटिक लाइंस आर पॉइंटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो देख लो प्लस के कैप में है ना, तो फील्ड क्या होगा? ये डॉट फील्ड है, मतलब यहाँ पे डॉट डॉट फील्ड है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट दो एग्जांपल और देखेंगे हम लोग। हाँ, फोर्थ, if suppose electric lines are like this, electric lines are given this way, this is what the electric field, a negative charge enters and it goes undeviated, एक नेगेटिव चार्ज अनडेविएटेड क्रॉस कर गया उस फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अब देख लो, बिकॉज़ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर आल्सो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे भी देख लो, इट इज अ नेगेटिव चार्ज which goes undeviated in an electric field, इसका मतलब that electrostatic force is cancelled by magnetic force, it is a negative charge, so negative charge is always forced against the electric field। इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा वो इधर एक्ट करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
because electric lines are in upward direction, the electrostatic force, it is a negative charge, so negative charge is always forced against the field, so that force is acting in downward direction. ठीक है, अब ये फोर्स कैंसिल होना चाहिए किससे? मैग्नेटिक फोर्स से, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जाएगा. नाउ यू हैव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड द वेलोसिटी. अब सोचो वेलोसिटी राइट साइड है तो करंट तो लेफ्ट साइड में जाएगा बिकॉज़ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज. So direction of flow of current is always opposite to direction of flow of negative charge. So negative charge is moving towards right, तो current left side में आएगा. You have the direction of current. Current ऐसा है, force ऐसा है, तो field का direction बताओ. So use Fleming left hand rule again. Force मालूम है अपने को, force upward है. Current is like this. Clear? तो अगर it is outward, तो magnetic lines किधर है? Outward direction. फिफ्थ एग्जांपल देख लो. हाँ, बिकॉज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट जाता है ना करंट. पॉजिटिव आयंस के सेम डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव आयंस के अगेंस्ट जाता है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड दे देता हूँ. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक नेगेटिव चार्ज ऐसे गया. So find the direction of electric field. Electric field का डायरेक्शन अपने को बताना है. तो फिर से देख लो, it is a negative charge. तो negative charge is moving towards right. तो इसमें करंट किधर होगा? लेफ्ट साइड में. करंट लेफ्ट में है. Magnetic lines are like this. Current is like this. So in which direction we are getting the force? Magnetic force is in downward direction. This is what FB. Magnetic force downward है. तो electrostatic force किधर आएगा? Upward. That FE. और नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज फोर्स्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऊपर है, इसका मतलब फील्ड किधर होगा? फील्ड किधर होगा? डाउनवर्ड, बिकॉज इट इज द नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज फोर्स्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. क्लियर? On the basis of given direction of, if a charge goes undeviated, then only you can do this thing, because this charge goes undeviated, it means electrostatic force is cancelled by magnetic force. Clear? और अगर दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस रिवॉल्व करते हैं and you have to compare the radius. अगर मान लो इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज व्हाट बी, टू चार्जेस आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट रेडियस. इसका रेडियस r1 है एंड इसका रेडियस, या सपोज रेडियस इज गिवन r and 2r. its charges are not given, q1 and q2, velocity is given v and 4v, and it is mentioned कि दोनों का मोमेंटम सेम है. p1 is equal to p2. the momentum of first charged particle is equal to momentum of the second charged particle. so find the ratio of the charge q1 by q2 you have to find. masses of charges are not given, but a situation is given कि momentum दोनों का same है. momentum same मत दो, 2 times ले लो. p1 is equal to 2 times of p2, that is momentum. yes. so momentum is equal. so what you can do, अब हमारा क्या हो जाएगा? m1, ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, तो m1v is equal to 2 times of m2 into velocity is what? velocity of the second particle is 4v. so what you will get? mv is equal to 8 m2v m1v. now vv is cancelled, so what you will get? m1 is equal to 8 m2 or m1 by m2 is equal to 8. now you can use that radius वाला expression. so radius का हम expression use कर सकते हैं. radius का expression क्या हो जाएगा? r1 by r2 is equal to mv by qb. तो m1 by m2 v1 by v2. मैग्नेटिक फील्ड सेम है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? q2 by q1, that is inversely proportional to charge. अब पुट कर दो r1 by r2, r1 is r by 2r is equal to m1 by m2. m1 by m2 is what? 8 into v1 by v2, v by 4v into q2 by q1, that is q2 by q1. now you can cancel, r is cancel, 2 यहाँ पे 2 आएगा, तो 1 by 4 is equal to q2 by q1 और q1 by q2 is equal to q1 by q2 is equal to 4. so you can get the ratio of the charge. here masses of the charges are not given, but a situation is given कि momentum of the first particle is 2 times the momentum of the second particle.
कभी कभी उनका काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी दे देते तो उस वैसे इक्वेट कर लो। क्लियर? इफ सपोज इन प्लेस ऑफ मोमेंटम इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेट कर दो, वहां से हमको रिलेशन मिल जाएगा मास और वेलोसिटी में। द क्वांटिटी which is not given, for that only a situation is given। यहाँ पे देखो मास नहीं दिया था, इसलिए एक सिचुएशन दिया है कि मोमेंटम p1 is equal to 2 times of p2।